પ્રિય રસિકજનો, પુષ્ટિ માર્ગનો અર્થ થાય છે કૃપા. પ્રભુની કૃપા વગર જીવ કંઈ જ કરી શકતો નથી. આથી આપણે પ્રભુ કૃપા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય બનવાનું છે. પ્રભુના સતત સાનિધ્યમાં રહેવાનું છે. પ્રભુનું સતત મનન ચિંતન કરવાનું છે. અનન્ય ભાવે પ્રભુના શરણે રહેવાનું છે. આ રીતે પ્રભુને મેળવવાનો માર્ગ એટલે પુષ્ટિ માર્ગ. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુની કૃપા હોય ત્યારે જ પ્રવેશ મળે છે. આવી રીતે પ્રભુ કૃપા પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગને દૈવી જીવો પહેલા અજાણ હતા. એટલે જ પ્રભુએ પોતે જ શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપે પ્રકટ થઈને ભૂતલ ઉપર પધારી આપણને આ માર્ગ બતાવ્યો. માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટ વે, માર્ગ રીત દિખાઈ. કલિકાલ યુગમાં પ્રભુને મેળવવા માટે શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા તપ, યજ્ઞ, જ્ઞાન, ઉપાસના તેમજ યોગ જેવા સાધનોથી પ્રભુને મેળવવાનું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. તેથી જગતના જીવો ઉપર પ્રભુને દયા આવી અને પ્રભુ પોતે પ્રકટ થયા. કારણ કે પ્રભુ સિવાય આ માર્ગની બીજા કોઈને જ ખબર ન હતી. આ માર્ગ વેદ અને શાસ્ત્રોમાંથી પ્રગટ થયો છે. આ કોઈ કાલ્પનિક માર્ગ નથી. બીજું, આ માર્ગની ખાસિયત એ છે કે પ્રભુની કૃપા ન હોય તો આ માર્ગમાં કોઈને પ્રવેશ મળતો નથી. તો આ માર્ગમાં પ્રવેશ મળ્યો એટલે પ્રભુની કૃપા થઈ ગઈ એમ જ મનાય. હવે આપણું કામ પ્રભુને મેળવવાનું. ઘણીવાર બને કે જીવ સ્વભાવે દુષ્ટ હોય તો પણ પ્રભુની કૃપા તેના ઉપર થઈ જાય અને તેને માર્ગમાં પ્રવેશ મળી જાય. પ્રભુને મેળવવા માટે પુષ્ટિ માર્ગ જેવો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. આ માર્ગમાં સાધન કરતાં પ્રભુની કૃપાનું વધુ પ્રાધાન્ય છે. તેથી આ માર્ગ ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. તો શું સૌથી વધુ જરૂરી છે? તો કહે છે કે આશ્રય, દ્રઢ આશ્રય જરૂરી છે. તો પુષ્ટિ આશ્રય એટલે શું? સૌથી મોટું ધન કયું છે હરિજન માટે? તેમજ શ્રી ગુસાઈજી બેઠકજીના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત બિરાજે છે. તો આ 28 બેઠકજીનું શું રહસ્ય છે? આ બધું જ ભાવદર્શન આજના સત્સંગમાં આપણે કરીશું. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું નાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પુષ્ટિ આશ્રય એટલે શું? પ્રથમ આશ્રય શબ્દનો અર્થ અને મર્મ સમજી લઈએ. શિક્ષા પત્રમાં વારંવાર શ્રી હરિરાયજી શ્રી વલ્લભ પ્રભુનો દ્રઢ આશ્રય કરવો એવી આજ્ઞા કરે છે. ભક્ત કવિ સુરદાસજી પણ આશ્રયના પદમાં દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો એવી આજ્ઞા કરે છે. શ્રી વલ્લભના ચરણ ગ્રહણ કેવી રીતે કરવા એનો મર્મ છે સતત તાપ ભાવપૂર્વક શ્રી વલ્લભનું નામ સ્મરણ કરવું. એ જ આશ્રય કર્યો કહેવાય. આશ્રયનો બીજો અર્થ થાય આશરો. આશરો એક શ્રી વલ્લભાધીશનો. વૈષ્ણવો આ પદ પ્રાયઃ બોલે છે. તેનો ભાવાર્થ તો કોઈક વિરલા જ જાણતા હોય છે. આશ્રય એ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. શ્રી આચાર્ય ચરણે અનુગ્રહનો એક અર્થ આશ્રય પણ કર્યો છે. તેથી આશ્રય અનુગ્રહની ભાંતિ ભગવાનના એક ધર્મરૂપ પણ છે. આશ્રય સિદ્ધ થયા વિના પુષ્ટિ શક્તિનો જીવમાં પ્રવેશ થતો નથી. ધ્યાન આપજો. આશ્રય સિદ્ધ થયા વિના પુષ્ટિ ભક્તિ અને પુષ્ટિ શક્તિનો જીવમાં પ્રવેશ થતો નથી. અને પુષ્ટિ શક્તિના પ્રવેશ વિના આત્મા બલિષ્ઠ થઈ ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકે. બલહીને ન લભ્ય શ્રુતિનું વાક્ય છે. અનન્ય ભાવ વિના આશ્રય દ્રઢીભૂત નથી થતો. એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણને શરણે જવાથી જ અનન્ય ભાવ સિદ્ધ થાય છે અને એ પ્રકારે અનન્યતાથી સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે.
હવે પુષ્ટિ મર્મને સમજીએ તો 10 મર્મ શ્રી હરિરાયજીએ બતાવ્યા છે. શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ કમલમાં દ્રઢ નિષ્ઠા રાખવી. બીજો મર્મ શ્રી કૃષ્ણની સેવા છે. તનોવિતજા સેવાથી સેવ્યને તત્સુખ ભાવથી સેવવા અને માનસી દશા સુધી પહોંચવું એ જ સેવા છે. લૌકિક વૈદિકનો ત્યાગ કરી પ્રભુને શરણે જવું. દીનતા શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રભુ પ્રાપ્તિનું એકમાત્ર સાધન દીનતા દૈન્યને ગણે છે. દીનતાના પાત્રમાં મનમાણી મૂકીને ભેટ ભગવંતજીને ધરજો જીરે. દૈન્ય પ્રાપ્તિથી જ પ્રભુ પ્રાપ્તિ પ્રસન્નતા સત્વરે થાય છે. દૈન્યયુક્ત વિરહ ભાવથી ગોપી ગીત ગાયું ત્યારે જ પ્રભુ અંતર્ધ્યાન થયા હતા. તે શ્રી ગોપીજનોની મધ્યમાં પ્રકટ થઈ ગયા. પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ સદાનંદ પ્રભુની નિત્ય લીલાની સદાય હૃદયમાં ભાવના કરવી. ભાવો ભાવનિયા સિદ્ધ. વિરહી વ્રજ ભક્તોનો ભાવ તેનું સ્મરણ કરવું તે છઠ્ઠો મર્મ. ભાવનું સ્વરૂપ સાકાર અને વ્યાપક છે. ભાવ જ સાકાર સ્વરૂપાત્મક છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ જ ફલરૂપ છે. પેલી વૈષ્ણવ ડોકરીએ પોતાના શુદ્ધ અનન્ય ભાવથી શ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રભુને મદન મોહનજી બનાવી દીધા હો શ્રીનાથજી. આવું ઉત્તમ પ્રમાણ ભાવનું વાર્તા સાહિત્યમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. 7મો મર્મ છે ગુણગાન. પ્રભુના ગુણગાનમાં અલૌકિક અગ્નિ રહેલો છે. જે ગુણગાન કરનાર ભક્તના હૃદયમાં રહેલ જન્મો જન્મની વાસનાના પાપોના ઢગલાને બાળીને સાફ કરી નાખે છે. ગુણગાન ધર્મરૂપ છે. તેમાં નામી પ્રભુ ધર્મી સ્વરૂપે બિરાજે છે. ગુણગાન કરનારના હૃદયમાં પ્રભુના ગુણો પ્રગટ થાય છે. અવળા ક્રમે પહેલા વૈરાગ્ય ગુણ આવે, પછી જ્ઞાન ગુણ. ગુણગાન તાપ ભાવે સ્વરૂપ અને લીલાના અનુસંધાન સહિત થાય તો જ તે ફલરૂપ છે. 8મું છે કૃષ્ણ નામ સ્ફુરે. નામ અને રૂપ બંને ફલરૂપ છે. તેથી જ પુષ્ટિ માર્ગમાં નામ સેવા અને સ્વરૂપ સેવા એમ 2 પ્રકારો દર્શાવ્યા છે. બંનેનું ફલ એક જ, સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ. પણ શરત એક જ કે નામ અને સેવા પ્રપંચ વિસ્મૃતિપૂર્વક થવી જોઈએ, તો જ તે ફલાત્મક થાય. 9મું ભગવદ વાક્ય માત્રમાં નિષ્ઠા જોઈએ. નિષ્ઠા તો માર્ગના પ્રાણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનો આજ્ઞામાં આધુનિક જીવોને નિષ્ઠા નહીં હોવાથી જ પુષ્ટિ ફલથી વંચિત રહીને ભટકે છે. સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું તે સેવકનો ધર્મ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે અસમર્પિતનો ત્યાગ, અન્યશ્રયનો ત્યાગ, અસદ આલાપ, અસત્સંગનો ત્યાગ. શું જીવ આ વચનો પાળે છે? જે આ 4 આજ્ઞા માને છે ને તે જ પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ જાણવો. 10મું મર્મ છે વિશ્વાસ. વિશ્વાસ એ ધર્મનો આત્મા છે. વિશ્વાસથી ધૂળની ચપટી ખાતા પણ રોગ મટી જાય છે. એક કિંવદંતી છે, વિશ્વાસે વાણ ચાલે છે. જ્યારે હરિગુરુ વૈષ્ણવમાં દ્રઢ વિશ્વાસ થાય ને ત્યારે જાણવું કે જીવ પુષ્ટિને લાયક થયો. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ કમલનો દ્રઢ આશ્રય રાખવો એ જ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રથમ કર્તવ્ય છે. પ્રિય વૈષ્ણવો, આ સંસારમાં રહેવાવાળા દરેકને ધનની આવશ્યકતા રહે છે. ધનથી જ બધા કાર્યો થાય છે. તેને મેળવવા અનેક પ્રયત્નો કરવા પડે છે. દુઃખ પણ વેઠે છે, પરંતુ મેળવ્યા પછી પણ તેની સંભાળ રાખવી પડે છે, નહીં તો ચોર લૂંટી જાય. અહીંયા તો સુરદાસજી કહે છે કે ભક્તો પાસે તો એવું મોટું ધન છે કે તેને લૂંટાવાની ચિંતા જ નથી. શક્ય જ નથી કે તે કોઈ લૂંટીને લઈ જાય. હરિજનને હરિના નામરૂપી ધન હોય છે, જેથી તેની રખવાડીની પણ જરૂર નથી. વળી હરિનામ રૂપી ધન ખર્ચ કરવાથી પણ ઓછું થતું નથી. જેમ વાપરે તેમ દિવસે ને દિવસે વધતું જ જાય છે. તેને લૂંટાવાનો ભય જ નથી. તેથી નિરાતે સૂવે છે. ભક્ત
જેમ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા સ્મરણ સત્સંગ કરીને સદા આનંદ મેળવે છે ને, જેને ઘેરે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા છે તેને પારસનું શું કામ? દ્રષ્ટાંત, એક વૈરાગી પાસે પારસમણી હતો. તેણે એક વૈષ્ણવને કહ્યું કે તમને હું પારસમણી આપું છું, તેનાથી રોજ ધન પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે તે વૈષ્ણવે કહ્યું કે હું તો શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરીને આનંદ મેળવું છું. જે અત્રે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, જે કોઈ મારી પાસે છે તેનાથી પ્રભુને રીઝાવું છું. પારસમણીની જરૂર હોય તેને આપો. આ છે ભક્તનું ધન. એટલે સુરદાસજી કહે છે, હરિજન કો હરિનામ, બડો ધન હરિજન કો હરિનામ. બિન રખવારે ચોર ન ચોરત, સેવત હૈ નિશયામ. બડો ધન હરિજન કો હરિનામ. દિન દિન બઢત સવાયો દોનો, ઘટત નહીં કछु દામ. सूरदास हरि सेवा जाके पारस को कहा काम. हरिजन को हरिनाम, बड़ो धन हरिजन को हरिनाम. પ્રિય રસિકજનો, હમણાં આપણે આશ્રયના 10 મર્મ જાણ્યા. એવી જ રીતે આશ્રયના 10 ધર્મ પણ છે. એક પદ છે તેમાં આશ્રયના 10 ધર્મ અને મર્મ બંને સમજાવેલા છે. આશરો એક દ્રઢ શ્રી વલ્લભાધીશ કો, માનસી રીત કી મુખ્ય સેવા, વ્યસન લોક વૈદિક ત્યાગ શરણ ગોપીશ કો. દીનતા ભાવ ઉદી બોધ ગુણગાન સો, ઘોષ ત્રિય ભાવના ઉભય જાને. કૃષ્ણ નામ સ્ફુરે પલ ન આજ્ઞા ટરે, કૃતિ વચન વિશ્વાસ દ્રઢ ચિત્ત આને. ભગવદીય જાન સતસંગ કો અનુસરે, ના દેખે દોષ અરુ સત્ય ભાખે. પુષ્ટિ પથ મર્મ 10 ધર્મ યહ વિધિ કહે, સદા ચિત્ત મેં દ્વારકેશ રાખે. પ્રિય વૈષ્ણવો, આપને આ પુષ્ટિ માર્ગના 10 ધર્મ અને 10 મર્મ વિસ્તારથી જાણવા હોય તો જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ ચિહ્નની ભાવનામાં પણ એક ચિહ્નના વિસ્તારથી વર્ણનમાં આ પુષ્ટિ માર્ગના 10 ધર્મ અને મર્મનો પણ વર્ણન આવે છે. તો જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો જો આપને આ વિસ્તારથી શ્રવણ કરવું હોય તો. હવે પ્રવેશ કરીએ શ્રી ગુસાઈજીની 28 બેઠકજીના ચરિત્રમાં. સૌપ્રથમ શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરી સ્તુતિ કરી અને પછી તેમાં પ્રવેશ કરીએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું ધ્યાન. સાયં કુંજાલય સ્થાસનમુપવિલસત સ્વર્ણ પાત્રમ સુધોતમ, રાજત યજ્ઞોપવીતમ પરિતનુવસનમ ગૌરમમ ભોજવક્ત્રમ. પ્રાણાનયમ્ય નાસા પુટનિહિતકરમ કર્ણરાજદ્વિમુક્તમ. વંદેર્ધોન્મિલિતાક્ષમ મૃગમદતિલકમ વિઠ્ઠલેશમ સુકેશમ. ભાવાર્થ. શ્રી ઠકુરાણી ઘાટ પર નિકુંજ છે. સાંજનો સમય છે. શ્રી વિઠ્ઠલેશજી સાયન સંધ્યા કરવા આસન પર બિરાજ્યા છે. તેમની આગળ સંધ્યા વંદન માટેના ઉજ્જવળ સુવર્ણ પાત્રો છે. તેના ગૌર શ્રીઅંગ પર આછા ઉપરણા નીચે યજ્ઞોપવિત શોભે છે. કર્ણમાં મોતીના કર્ણફૂલ છે. લલાટમાં કસ્તુરીનું તિલક છે. મસ્તકે સુંદર કેશરાશી છે. શ્રી હસ્તની આંગળીઓ નાસિકા ઉપર દબાવી અર્ધ બીડેલા નેત્રે પ્રાણાયામ કરે છે. આવા શ્રી વિઠ્ઠલેશજીને હું વંદન કરું છું. આ સમયે આપનું વય 57 વર્ષનું હતું. આ શ્લોકથી એમનું સ્વરૂપ ધ્યાન કરવું જોઈએ. હવે કહેવાય છે ને કે શ્રી વલ્લભ 6 સ્વરૂપે ભૂતલ પર બિરાજે છે. ઠાકોરજીએ પણ કહ્યું છે કે હું 6 સ્વરૂપે સાક્ષાત ભૂતલ પર બિરાજું છું, જેનું ભાવદર્શન આપણે અગાઉ કરેલું છે. તો હવે એ સ્વરૂપોમાંનું એક સ્વરૂપ છે બેઠકજી.
એટલે બેઠકજીમાં શ્રી વલ્લભ અને શ્રી વિઠ્ઠલ સાક્ષાત સ્વરૂપે બિરાજે છે, જેનો અનુભવ આપણે બેઠક કરવા જઈએ ને ત્યારે જરૂરથી થાય છે. શાંત ચિત્તે બેસી ઠાકોરજી શ્રીનાથજી મહાપ્રભુજીના અને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરતા કરતા શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર અને નામરત્ન આખ્યાનો પાઠ કરશો ને આપને અલૌકિક અનુભૂતિ થશે. શ્રી વિઠ્ઠલ નામ તો જગત પ્રસિદ્ધ છે અને એનું રહસ્ય બધા જાણતા નથી હોતા. જેવી રીતે એક નાનકડા બીજમાંથી વિશાળ વડના વૃક્ષનો વિસ્તાર થાય છે ને, તેમ શ્રી ગુસાઈજીનું આ વિઠ્ઠલ નામમાંથી એમના 108 નામોનો વિસ્તાર પ્રકટ થયો છે. વૃક્ષનો બીજ અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે, પરંતુ તેમાં આખું વૃક્ષ છુપાયેલું હોય છે. તે બીજની શક્તિ અકલ્પ્ય હોય છે. તેવું જ આ શ્રી વિઠ્ઠલ નામનું પણ છે. એ વિઠ્ઠલ નામનું ભાવ દર્શન હમણાં આપણે ગઈકાલે જ કર્યું હતું. ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી. એટલે હવે શ્રી ગુસાઈજી 28 બેઠકજીના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત બિરાજે છે. એટલે આ બેઠકજીનું ચરિત્રનું આપણે ભાવ દર્શન કરીશું ને, તેમાં કીર્તન સંગતિ પણ છે, ક્યાંક ક્યાંક પદની પણ સંગતિ આવે છે. તો ચાલો ને એક નવા જ રૂપમાં શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે માનસીમાં શ્રી ગુસાઈજીના બેઠકજીએ દંડવત કરીશું. શ્રી ગુસાઈજીને કુલ 28 બેઠકજી છે. તેનો શું ભાવ છે તે પહેલા સમજી લઈએ, કારણ કે આપણો પુષ્ટિ માર્ગ ભાવ ભાવનાનો માર્ગ છે. વાલા વૈષ્ણવો, જે સ્થળે શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી ભાગવત પારાયણ કર્યું તે સ્થળ શ્રી ગુસાઈજીના બેઠકજી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેમના કુલ 28 બેઠકજી છે. 28 કેમ? એની ભાવના એવી છે કે શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું જ સ્વરૂપ છે. ધ્યાન આપજો, શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું જ સ્વરૂપ છે. શ્રી ઠાકોરજીના 6 ધર્મ મુખ્ય, તે 6 ધર્મવાળા શ્રી ઠાકોરજી ધર્મી સ્વરૂપ. ધર્મ અને ધર્મી મળી 7 થાય ને. તેમની પ્રાપ્તિ માટે 4 પુરુષાર્થ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, 4 પુરુષાર્થ દ્વારા સપ્તવિધા શ્રી ઠાકોરજી મળે. 7 ને 4 થી ગુણવાથી 28 થાય. બીજી ભાવના એવી છે કે શ્રી ગુસાઈજી ચંદ્રાવલીજીનું સ્વરૂપ છે. શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ 4 પુરુષાર્થ દ્વારા સપ્તવિધ શ્રી ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. ધ્યાન આપજો, શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ 4 પુરુષાર્થ દ્વારા સપ્તવિધ શ્રી ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. તેમણે આપણને પણ 28ના અંક દ્વારા એ માર્ગ શીખવ્યો. આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ. ત્રીજી ભાવના એવી છે કે સપ્તવિધ શ્રી ઠાકોરજીના 4 સ્વામિનીજી છે. શ્રી યુગલ સ્વરૂપ 28 નિકુંજોમાં લીલા વિલાસ કરે છે. સંયોગ રસાત્મક સ્વરૂપ શ્રી ગુસાઈજી વિપ્રયોગ રસના ભાવાનુભાવ માટે શ્રી બેઠકજીમાં બિરાજ્યા છે. આપની 28 બેઠકો આ પ્રમાણે છે. વાલા વૈષ્ણવો, 16 બેઠક વ્રજમાં છે, 4 બેઠકો ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં છે અને 8 બેઠકો ગુજરાતમાં છે. તો પહેલા 16 બેઠક જોઈએ જે વ્રજમાં બિરાજે છે. પહેલી ગોકુલ શ્રી ગોકુલનાથજીના મંદિરમાં, બીજી બડી બેઠક ગોકુલ, ત્રીજી વૃંદાવન, ચોથી રાધા કૃષ્ણ કુંડ, પાંચમી ચંદ્ર સરોવર, છઠ્ઠી ફૂલઘર, છઠ્ઠી ફૂલઘર ચંદ્ર સરોવર પર, 7મી જતીપુરા, 8મી જતીપુરા શ્રી મથુરાનાથજીના મંદિરમાં, 8મું કામવન, 9મું પ્રેમ સરોવર, 10મું રીઠોરા, 11મું કરહલા, 12મું કોટવન, 13મું ચીરઘાટ, 14મી બેઠક બચવન, 15મી સંકેતવન અને 16મી બેલવન. એટલે આ 16 બેઠકજી વ્રજમાં બિરાજે છે. હવે 4 બેઠકો ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં છે. તેમાં પહેલી સોરમ, બીજી ચરણાટ, ત્રીજી અડેલ ને ચોથી ગૌડ દેશ બંગાળમાં. જે બેઠકજી છે તે અપ્રગટ છે.
ત્યારબાદ 8 બેઠકો ગુજરાતમાં છે. તેમાં પહેલી ગોધરા, બીજી અલીણા, ત્રીજી અસારવા, ચોથી ખંભાત, પાંચમી જામનગર, છઠ્ઠી ગાગાગુરગઢ, સાતમી દ્વારકા શ્રી દાવજી મંદિર પાસે, આઠમી દ્વારકા શ્રી રામ લક્ષ્મણ મંદિર પાસે. ગુજરાતમાં બરડિયાના બેઠકજી 142 બેઠકોની ગણતરીમાં નથી, એટલે અહીં લખ્યું નથી. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રી ગુસાઈજીના સેવકો અસંખ્ય હતા. રોજ 2 જીવને આપ શરણે લીધા પછી જ ભોજન કરતા. આપના 252 સેવક કેમ? તો તેની પણ ભાવના છે. 252 મુખ્ય છે તો 84 ગુણ્યા 3 બરાબર 252. શ્રી મહાપ્રભુજીના 84 સેવકો નિર્ગુણ છે. સગુણમાં સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. એટલે 84 વૈષ્ણવ પૈકીના એક વૈષ્ણવના ભાવના 3 સગુણ વૈષ્ણવોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી 252. ભક્તિના 84 પ્રકાર. દરેક કોષમાં શ્રી યુગલ સ્વરૂપની એક નિકુંજ. 3 ભાવવાળા ગોપીજનોએ સેવા કરી, તેથી 252. વાલા વૈષ્ણવો, આપણે નિત્ય સત્સંગમાં 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તા વાંચતા હોઈએ છીએ. ક્યારેક એવી રીતે વાંચી જોજો કે પહેલી વાર્તા દામોદરદાસ હરસાણીજીની વાંચ્યા બાદ 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં પહેલી 3 વાર્તાઓ લેવાની. એ પણ દામોદરદાસ હરસાણીજીના સાત્વિક, રાજસ અને તામસ ગુણને પ્રગટ કરે એવી રીતે છે. આપ ધ્યાનથી વાંચશો, લીલાના નામ જોશો તો આપને સમજાશે, અને પછી આપને એ રીતે વાંચતા ખૂબ જ આનંદ આવશે. તો ચાલો હવે આપણે માનસીમાં ગુસાઈજીના બેઠકજીએ દર્શન કરવા પહોંચી જઈએ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છીએ. આજે આપણે તેમાં જોઈશું શ્રી ગુસાઈજીના બેઠક ચરિત્ર. આપણે અલગ અલગ રીતે આવરી લઈએ તો આપણે વધારે આનંદ આવે, એટલે આજે આ બેઠક ચરિત્ર કરેલું છે. વચનામૃતમાં પણ આપણે સાંભળીએ છીએ કે શ્રી ગુસાઈજી બેઠકજીમાં સાક્ષાત સ્વરૂપે બિરાજે છે. બેઠક ચરિત્ર. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. श्री गुसाई जी की बैठक चरित्र. 1. श्री गोकुल की बैठक. श्री गुसाई जी की बैठक गोकुल में 2 है. उसमें एक बैठक श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में है. वहाँ श्री गिरधर जी और श्री गोकुलनाथ जी को श्री गुसाई जी के साक्षात दर्शन हुए थे. श्री गिरधर जी गादी के सामने विराज कर संध्या वंदन करते थे. गादी के ऊपर विराज कर नहीं करते थे. एक दिन श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी से प्रार्थना की, दादा आपको गादी ऊपर बैठने का अधिकार है, आप गादी पर क्यों नहीं विराजते हैं? तब श्री गिरधर जी ने आज्ञा की, मेरे को इस बैठक की गादी पर विराजने पर श्री गुसाई जी के दर्शन होते हैं, तुम भी देखो. तब श्री गोकुलनाथ जी को श्री गुसाई जी के साक्षात दर्शन हुए. उस समय श्री गुसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे. भगवदियों ने भी गाया है, माणिक चंद प्रभु सर्वदा श्री गोकुल करत विहार, सदा व्रज में ही करत विहार. युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो. यह सुख भजन प्रताप तेजते छिन इत उत नटरो. ऐसे भगवदियों ने अनेक बधाइयां में गाया है. आप श्री गोकुल में सदा विराजमान है. यह चरित्र श्री गुसाई जी ने श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर की बैठक में प्रकट किया. बीजी बैठक श्री गोकुल की बड़ी बैठक. श्री गुसाई जी की दूसरी बैठक श्री महाप्रभु जी की बड़ी बैठक है में श्री महाप्रभु जी के सामने विराजे, जहाँ श्री गुसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी को पालने झुलाया. उस समय नंद महोत्सव का महाअलौकिक दर्शन सब भगवदियों को श्री गुसाई जी ने करवाया. उस समय सब भगवदियाँ आनंद में मग्न हो गए. किसी को देह की दशा की सुधि नहीं रही. श्री गुसाई जी ने सभी को सावधान किया. जब तक श्री नवनीत प्रिया जी का मंदिर नहीं बना था
तब तक श्री महाप्रभु जी की बैठक में विराजे। उस समय आपने सहज आज्ञा की, इस समय में मंदिर की नींव की खुदाई करे तो मुहूर्त अच्छा है। मंदिर की नींव अविचल हो, यह आज्ञा की। आप ओढ़ने पधारे, उस समय यादवेंद्र दास खड़े थे। उसी समय नींव खोदने लगे। एक रात्रि में सारे मंदिर की नींव खोदी। प्रातः श्री गुसाई जी जागे तो क्या देखते हैं, रज के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, यह ढेर किसका है? वैष्णवों ने विनती की, महाराजाधिराज यादवेंद्र दास ने यह मंदिर की नींव खोदी है। तब आपने यादवेंद्र दास से पूछा, यह नींव कौन से समय में खोदी है? उसने विनती की, राजा आपने आज्ञा की थी उसी समय खोदी है। श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। पीछे वहाँ श्री नवनीत प्रभु का मंदिर सिद्ध हुआ। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने बड़ी बैठक में प्रकट किया। तीसरी बैठक, वृंदावन में बंसी बट। श्री वृंदावन में बंसी बट में श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक के पास श्री गुसाई जी विराजे थे। वहाँ वृंदावन के महंत हरिवंश आदि बैठे थे। तब हरिवंश ने श्री गुसाई जी से प्रार्थना की, आप संध्या वंदन करते हो? तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, हमारे मार्ग में तो संध्या उपासना मुख्य है। जो एतन मार्गीय भक्त है वह संध्या की उपेक्षा करते हैं। नंदालय से प्रभु प्रातः समय गोचारण को पधारते हैं, तब एतन मार्गीय भक्तों को विप्रयोग होता है। जब सायंकाल आप वन में से पुनः पधारते हैं, तब संयोग रस का दान करते हैं। इसमें यह आज्ञा की है कि हमारा मार्ग है वह व्रज भक्तों का भावात्मक है। इतने में ही एक व्यक्ति भगवत स्वरूप लेकर श्री गुसाई जी के पास आया। उसको श्री गुसाई जी ने देखा। देखते ही वह स्वरूप पुरुषोत्तम की क्रीड़ा करने लगे। कोई तो वेणुनाद करता है, कोई घुटुरुवन लीला करते हैं। ऐसे सब स्वरूप अपनी अपनी लीला करने लगे। इसमें यह बताया कि और कोई प्रतिष्ठा करे तब पुरुषोत्तम होता है, हमारी दृष्टि से ही पुरुषोत्तम होता है। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने श्री वृंदावन में महंत को दिखाया है। तब सब महंतों ने साष्टांग दंडवत की। यह महात्म्य देखकर अनेक जीव श्री गुसाई जी की शरण आए। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने वृंदावन की बैठक में प्रकट किया। चौथी बैठक, श्री राधा कुंड की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक श्री राधा कुंड के ऊपर श्याम तमाल के नीचे है। वहाँ आप विराजे। यहाँ पर एक दिन विराजते थे, तब वहाँ रघुनाथ दास गोड़िया ने आकर के दंडवत कर विनती की, महाराज आप श्री स्वामिनी जी का स्वकीयत्व मानते हैं? तब आपने आज्ञा की, हाँ हम स्वकीयत्व मानते हैं। उसने कहा, हमारे तो परकीयत्व मानते हैं। तब आपने आज्ञा की, एक कागज लाओ और इस कुंड में डालो। वहाँ से श्री स्वामिनी जी श्री हस्ताक्षर लिखकर भेजे, वह प्रमाण माने। कोरा कागज लेकर कुंड में डाला, वह तत्काल डूब गया। निकुंज में श्री स्वामिनी जी विराजते थे। वहाँ ललिता जी ने विनती की, यह कागज श्री गुसाई जी ने भेजा है, गोड़ियों से वाद हुआ है। श्री स्वामिनी जी ने एक श्लोक लिख दिया। तब श्री गुसाई जी ने एक वैष्णव से कहा, वह कागज ले आओ। वैष्णव ने वह कागज लाकर श्री गुसाई जी को दिया। कागज श्री स्वामिनी जी की इच्छा से भीगा नहीं था। उस कागज में से वह श्लोक पढ़ा, जयति वृषभान कुल की मोदी राधिके जयति कृष्ण परमानंद कुल चंद्रमा। श्री गुसाई जी के यह श्लोक पढ़ते ही सभी गोड़िया निरुत्तर हो गए। पहले जो श्री गुसाई जी ने उत्तर दिया था, वहाँ श्री स्वामी जी ने लिख भेजा था, तथा तब गोड़ियाओं ने जाना कि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी श्री गुसाई जी के वश में है। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने राधा कुंड की बैठक में प्रकट किया। पांचवी बैठक, चंद्र सरोवर की बैठक। श्री गुसाई जी की चंद्र सरोवर पर दो बैठक है। प्रथम बैठक श्री महाप्रभु जी के पास आप विराजते हैं। जब कृष्णदास अधिकारी ने श्रीनाथ जी के दर्शन बंद किए थे, तब श्री गुसाई जी परासोली में विराजकर विप्रयोग का अनुभव किया था।
उस समय श्रीनाथ जी ने निज मंदिर में एक छोटी सी बारी थी, उसमें से श्री गुसाई जी को दर्शन देते थे। उसकी कृष्णदास को सूचना मिली तो वह बारी बंद करा दी। तब श्री गुसाई जी विज्ञप्ति लिखकर भिजवाते थे। श्रीनाथ जी उसको पढ़कर रामदास को देते तथा श्रीनाथ जी भी पत्र लिखकर रामदास को देते। रामदास वह पत्र भी श्री गुसाई जी को देते। वह पत्र श्री गुसाई जी पढ़कर फिर पानी में घोलकर पी जाते। ऐसे 6 महीनों तक आपने विप्रयोग रस का अनुभव किया। यह चरित्र आपने श्री चंद्र सरोवर की बैठक में किया। અહીં એક વાતનો ખુલાસો કરવાનો કે શ્રીજી બાવા જે પત્ર લખતા તે પત્ર શ્રી ગુસાઈજી વાંચીને જલમાં ઘોળીને પી જતા, એટલે તે પત્ર પ્રગટ નથી થયા। પરંતુ શ્રી ગુસાઈજી જે વિજ્ઞપ્તિ લખતા શ્રીનાથજીને તે શ્રીનાથજી પોતે વાંચી અને રામદાસ મુખિયાને આપી દેતા, એટલે તે વિજ્ઞપ્તિઓ અત્યારે પ્રગટ છે। આપને તેની લિંક જોતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। વિથ લિરિક્સ પણ છે અને એકલો ભાવાર્થ પણ છે। તેની પ્લેલિસ્ટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવશે। छठू, चंद्र सरोवर में फूल घर की बैठक। चंद्र सरोवर में श्री गुसाई जी की दूसरी बैठक फूल घर में है। वहाँ श्री गुसाई जी विप्रयोग में विराजते थे, फूल घर की सेवा करते। उस फूल घर में विराज कर श्री गुसाई जी फूल की माला सिद्ध करके श्रीनाथ जी के लिए नित्य भेजते थे। श्रीनाथ जी राजभोग आरोप चुके तब माला बोली है। इस प्रकार माला का वेग पधराओ, यही भाव सो, एक पुकार की जाती। उस समय उस आवाज को सुनकर श्री गुसाई जी वह फूल की माला भेजते। इसलिए उसी दिन से अब तक माला बोलने का प्रचार हुआ है। वहां से माला आने के पश्चात श्रीनाथ जी के अंगीकार करने के बाद राजभोग के दर्शन खुलते। दर्शन हो चुके तब रामदास जी श्रीनाथ जी की प्रसादी माला और बीड़ा नित्य श्री गुसाई जी को देने जाते। उसी समय श्रीनाथ जी का पत्र भी श्री गुसाई जी ऊपर लिखते, वह दे आते थे। श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के लिए विज्ञप्ति लिखकर ले आते थे। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने चंद्र सरोवर के फूलघर की बैठक में प्रकट किया। 7वीं बैठक श्री गिरिराज जी की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक श्री गोपालपुर श्री गिरिराज जी में मथुरेश जी के मंदिर में है। वहाँ श्री गुसाई जी विराजते। तब एक दिन श्री गोकुलनाथ जी ने विनती की। महाराजा धीराज श्री महाप्रभु ने 1.25 सेर भात का अन्नकूट करवाया। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, हाँ, श्री महाप्रभु जी की लीला नित्य अखंड है। ऐसा कहकर श्री गोकुलनाथ जी और श्री शोभा बेटी जी को श्री महाप्रभु जी ने अलौकिक दर्शन करवाए। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने गोपालपुर में श्री मथुरेश जी के मंदिर में प्रकट किया। ત્યારબાદ 8મી બેઠક છે શ્રી કામવન શ્રી કુંડ। તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના ગુણગાનમાં શ્રી ગુસાઈજીનું બેઠક ચરિત્ર જોઈ રહ્યા છીએ। ગયા પાઠમાં આપણે 7 બેઠકજી સુધી જોયું હતું। આજે આપણે 8મી બેઠકથી શરૂ કરીશું। 8 श्री कामवन श्री कुंड। श्री गुसाई जी की बैठक कामवन में सुरभि कुंड श्री कुंड के ऊपर है। वहाँ आपने श्री महाप्रभु जी के परोक्ष दिशा में श्री गुसाई जी के सेवक मधुसूदन दास को श्री महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन करवाए। वह मधुसूदन दास श्री महाप्रभु जी की सेवा नित्य करते और सर्वोत्तम का जप नित्य करते तथा दूध पीकर रहते थे। इसके मन में यह मनोरथ था कि मेरे को श्री महाप्रभु जी साक्षात दर्शन दे, मेरे को श्री महाप्रभु जी साक्षात दर्शन देंगे। ऐसे करते 1 मास हो गया। तब श्री गुसाई जी वहां पधारे। 3 दिन तक विराजे। उसके पीछे श्री गुसाई जी गोकुल पधारे। पीछे 6 मास होने पर श्री महाप्रभु जी ने कोटि कंदर्प लावण्यमय स्वरूप के दर्शन दिए और आज्ञा की,
मधुसूदन दास, तेरे को इतना विलंब नहीं होता, किंतु श्री गुसाई जी ने यहाँ पधार कर तेरे को दर्शन दिए। तभी तेने श्री गुसाई जी में और मेरे में भेद बुद्धि कर बैठा रहा। प्रथम तो वैष्णव को दास का हट करने का धर्म नहीं है, इसलिए तेरे को इतना विलंब हुआ। अगर विरह हो तो मेरे वंश के बालक जहाँ विराजे वहाँ जाकर दर्शन करे, मुख्य यही उत्तम है। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने श्री कामवन में सुरभि कुंड पर प्रकट किया। અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે જ કહે છે કે મારા અને મારા વંશજોમાં કોઈ ભેદ કરવો નહીં। એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી જે મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જ શ્રી ગુસાઈજી છે, એટલે મહાપ્રભુજી ફરી ભૂતલ પર શ્રી ગુસાઈજી સ્વરૂપે પધાર્યા છે। શ્રી મહાપ્રભુજીએ દામોદરદાસ હરસાણીને પણ કહેલું છે કે શ્રી ગુસાઈજી को मेरो ही स्वरूप जाननो, એ આપણે તેની વાર્તામાં જોઈ શકીએ છીએ। એટલે આપણે વલ્લભકુળમાં ભેદ બુદ્ધિ કરવી નહીં। અહીં પોતે શ્રી મહાપ્રભુજી તેમ કહી રહ્યા છે। નવમી બેઠક श्री प्रेम सरोवर। श्री गुसाई जी की बैठक प्रेम सरोवर ऊपर है। वहाँ श्री गुसाई जी ने प्रेम सरोवर में स्नान किया और गोविंद स्वामी को युगल स्वरूप का दर्शन श्री गुसाई जी ने करवाया और श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत की टीका यहाँ बिराज कर की और 1 मास पर्यंत आप वहाँ बिराजे। इससे सभी को अनिर्वचनीय सुख हुआ। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने प्रेम सरोवर की बैठक में प्रकट किया। श्री गुसाई जी ये स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र लख्યું છે તે ભાવાર્થ સહિત અમારી ચેનલમાં સ્તોત્ર પાઠની પ્લેલિસ્ટમાં આપને મળી જશે અને જો યાદ આવશે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવશે। સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત સ્તોત્ર શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી મહાપ્રભુજી માટે લખેલું છે અને મહાપ્રભુજી એ જ કૃષ્ણ, બંનેમાં કાંઈ ફેર નથી। વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવું તેમાં શ્રી ગુસાઈજીએ દર્શાવ્યું છે। ખૂબ જ સુંદર ગ્રંથ છે, સ્તોત્ર છે અને વચનામૃતમાં પણ આવે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું હોય તો સર્વોત્તમ સ્તોત્ર, વલ્લભાષ્ટક અને આ સપ્તશ્લોકી સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત સ્તોત્ર ત્રણેય સ્તોત્રનો રોજ પાઠ કરવો જોઈએ તો આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધર્યું કહેવાય। ત્યારબાદ 10મી બેઠક છે સંકેત વટ की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक संकेत वट में संकेत देवी के पास है। आपका एक सेवक गुजराती ब्राह्मण रेंडा था। इसको आपने दिव्य चक्षु देकर ब्याह खेल का अलौकिक दर्शन करवाया। वह रेंडा वैष्णव दर्शन करके रस में मग्न हो गया, देहानुसंधान नहीं रहा। तब श्री गुसाई जी ने सावधान किया। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने संकेत वट की बैठक में प्रकट किया। ત્યારબાદ 11મી बैठक છે रिठोरा की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक रिठोरा में है। वहाँ श्री चंद्रावली कुंड में आपने स्नान किया और आज्ञा की यह चंद्रावली जी निकुंज है, इसलिए आपने वहाँ 3 दिन का पारायण किया। वहाँ महाअलौकिक सुख हुआ। पीछे श्री गुसाई जी ने वहाँ दान लीला ग्रंथ प्रकट किया। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने रिठोरा की बैठक में प्रकट किया। અહીં જે દાન લીલા ગ્રંથની વાત કરવામાં આવી છે તે શ્રીંગાર રસ મંડનમાં 3 પ્રકરણ છે। તે રીતે તેમાં દાન લીલાનું જે પ્રકરણ છે તે અહીં શ્રી ગુસાઈજીએ ચંદ્રાવલીજી ભાવે રચના તેની કરી છે, તેની અહીં વાત કરવામાં આવી છે। 12મી बैठक करहला की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक करहला में श्रीनाथ जी के झलघरा के पास है। वहाँ आप 3 दिन तक विराजे। वहाँ पर आपने श्री रास पंचाध्याय की सुबोधिनी जी के ऊपर टिप्पणी ग्रंथ लिखकर प्रकट किया। रासोली में ललिता जी का स्वरूप है। श्री गुसाई जी उस स्वरूप को एक पुष्पमाला पहराने लगे, तब श्री ललिता जी ने वह माला हाथ में ले ली, पहनी नहीं। उस समय आप चुप रहे, यह माला किसी ने देखी नहीं थी। पीछे सायंकाल जब आप दर्शन को पधारे तब ललिता जी ने कहा कि तुम्हारी माला श्री स्वामिनी जी को पहनाई है। वह माला प्रसादी करके मेरे को दी है तथा आज्ञा की है कि यह माला श्री गुसाई जी को देना। यह माला आप पहरोगे। तब माला पहर कर
श्री गुसाई जी ने यह श्लोक कहा। निकुंजे पुष्पाली रचित शयनाथ केली जनित श्रमामह संक्रांता नन कमल शोभारुत मनाहा समुत्थायान्याति सहज कृपया केली दलित सज्रम दातुम राधे स्मरसी यदि माम त्वं किम परह। यह श्लोक कहकर आप बहुत प्रसन्न हुए और ललिता जी भी प्रसन्न हुई। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने करहला की बैठक में प्रकट किया। 13वीं बैठक कोटवन बैठक चरित्र। श्री गुसाई जी की बैठक कोटवन में कदम खंडी पर शीतल कुंड के ऊपर है। वहाँ गोविंद स्वामी श्री गुसाई जी के साथ थे। अर्धरात्रि के समय श्री गुसाई जी ने गोविंद स्वामी को आज्ञा की, तुम देखो कदम खंडी में क्या लीला होती है। तब गोविंद स्वामी ने देखा युगल स्वरूप विहार कर रहे हैं। उस समय रसमतता से श्री प्रभु जी ने श्री स्वामिनी जी के मोतियों का हार तोड़ डाला है। सब मोती भूमि पर बिखरे पड़े हैं। श्री ठाकुर जी मोतियों को बीनकर अपने श्री हस्त से हार पोकर श्री स्वामिनी जी को पहराया। श्री गुसाई जी ने इस लीला के दर्शन गोविंद स्वामी को करवाए। गोविंद स्वामी ने उस समय यह पद गाया। राग केदारो कदम वन विथन करत विहार मदन मोहन पिय अति रसमाते तोर्यो प्रिया उरहार कनिक भूमि विथुरे गज मोती कुंज कुटी के द्वार गोविंद प्रभु श्री हस्त सोपोई सुंदर ब्रजराज कुमार। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने कोटवन की बैठक में प्रकट किया। 14वीं बैठक चीरघाट की बैठक चरित्र। श्री गुसाई जी की बैठक चीरघाट ऊपर है। वहां आप विराजे। तब आपने आज्ञा की अग्नि कुमारी का अलौकिक रात्रि के दर्शन श्री ठाकुर जी ने करवाए और वरदान दिया कि शरद की रात्रि में बुलाकर रास कर रसदान करूंगा। यह आज्ञा करके श्री गुसाई जी ने व्रतचर्या ग्रंथ प्रकट किया और 3 दिन तक वहीं विराजे। अनिर्वचनीय सुख हुआ। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने के चीरघाट की बैठक पर प्रकट हुआ। 15वीं बैठक बचवन की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक बचवन में छोकर के वृक्ष के नीचे है। आप वहां विराजे और आज्ञा की। ब्रह्मा जी ने यहाँ बच्चों का हरण किया। पीछे आपने यहाँ श्री वेणुगीत की सुबोधिनी जी ऊपर टिप्पणी प्रकट की। यहाँ अलौकिक आनंद हुआ। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने बचवन की बैठक में प्रकट किया। 16वीं बैठक बेलवन की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक श्री बेलवन में श्री यमुना जी के किनारे है। वहां पर आपने विराज कर भगवान दास को अलौकिक रास के दर्शन करवाए। वहां आपने पुरुषोत्तम उल्लास ग्रंथ प्रकट किया। पीछे आपने वहां से विजय की। यह चरित्र आपने बेलवन की बैठक में प्रकट किया। 17वीं बैठक चरणाठ की बैठक। श्री गोसाई जी की बैठक चरणाठ में है। वहां आपका छठी पूजन हुआ था। वहां श्री गोसाई जी ने अलौकिक चरित्र दिखाया। उस समय श्री गोसाई जी ने लीला सृष्टि और लीला सामग्री को अंगीकार किया। लक्ष्य अवधि जीवों को कटाक्ष द्वारा अंगीकार किया। यह देखकर श्री आचार्य जी महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। श्री गोसाई जी जब 1 माह के हुए थे तब गंगा पूजन किया था। श्री गंगा जी बहुत बड़े। उस समय श्री गोसाई जी श्री अक्का जी की गोद में विराज रहे थे। तब श्री गंगा जी ने चरण स्पर्श किए और कहा कि महालक्ष्मी जी आप बड़े भागी हो। आपके पति साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। तथा पुत्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम है। आपके वंश में सभी पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रगटेंगे। यह आज्ञा करके श्री गंगा जी पधारे। तब श्री अक्का जी अनेक सखियों के सहित मंगल गाते हुए बैठक में पधारे। श्री महाप्रभु जी ने श्री गोसाई जी का स्वरूप देखकर आज्ञा की, यह पुत्र रूप और ठाकुर स्वरूप होकर आप ही पधारे हैं। तब श्री ठाकुर जी का और श्री गोसाई जी का नाम श्री विठलनाथ जी रखा। उसके पीछे चरणाठ से विजय की। श्री आचार्य जी का महाप्रभु श्री गोसाई जी को लेकर श्री अडेल पधारे।
उस समय अडेल में जय जयकार हुआ। यह चरित्र श्री गोसाई जी ने श्री चरणाट की बैठक में प्रकट किया। 18वीं बैठक, अडेल की बैठक। श्री गोसाई जी की बैठक अडेल में है। वहां आपने बाल क्रीड़ा की है। वहां श्री महादेव जी आपको नित्य खिलौना लेकर खिलाने को आते थे, श्रृंगी नाच करते थे, नृत्य करते। उसको देखकर आप बहुत प्रसन्न होते थे। आपके कृपा पात्र अंतरंग भगवदिया आपको नित्य खिलाते थे। आप भी हाव भाव कटाक्ष कर रसदान करते थे। जब आपकी कृपा कटाक्ष द्वारा सहस्रावधि जीवों को अंगीकार किया। ऐसे अनेक चरित्र श्री गोसाई जी ने प्रकट किए। 19वीं बैठक, गौड़ देश की बैठक। श्री गोसाई जी की बैठक गौड़ देश में नारायण दास जी के घर में है। वहां नित्य श्री गोसाई जी विराजते थे। एक समय श्री गोसाई जी गौड़ देश में पधारे। वहां बगीचे में विराजे। नारायण दास जी नित्य सवेरे दर्शन को जाते, पुनः सायंकाल आते थे। बादशाह के पास एक बार मिलकर चले आते थे। राज्य का काम नहीं चलाते। एक दिन बादशाह ने याद किया, आजकल दीवान दिखते नहीं है, उसका क्या कारण है? तब किसी चुगलखोर ने कहा, हजरत श्री गोकुल के श्री गोसाई जी पधारे हैं, इसलिए रात दिन वहाँ रहते हैं। तब बादशाह ने हलकारा से कहा कि नारायण दास को बुलाओ। वहां जाकर हलकार ने नारायण दास जी से कहा कि बादशाह याद कर रहे हैं। तब नारायण दास जी कचहरी में आए। बादशाह ने पूछा, आजकल दिखते नहीं हो, इसका क्या कारण है? दीवान ने कहा, मेरे गुरु पधारे हैं, इस कारण जहाँ तक वे विराजेंगे तब तक आना नहीं हो सकेगा। बादशाह ने कहा, सुखे न जाओ, मेरी ओर से निवेदन करना, मेरे को भी दर्शन देवे। दीवान ने कहा, कहेंगे। दीवान श्री गोसाई जी के दर्शन को आए और विनती की, आपने आज्ञा की बादशाह को दर्शन को बुला लाना। दीवान ने दंडवत के पीछे घर आया। बादशाह से कहा, तुमको दर्शन होंगे। तब दूसरे दिन दीवान के साथ बादशाह दर्शन को आया। बादशाह को श्री गोसाई जी के साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। बादशाह ने साष्टांग दंडवत की तथा 10,000 रुपये श्री गोसाई जी के आगे धरे। श्री गोसाई जी समाधान करने लगे। तब बादशाह ने प्रार्थना की, महाराज मेरे मस्तक पर सदा विराजो, ऐसी वस्तु कृपा करके दो। श्री गोसाई जी ने श्रीहस्त से उपरना ओढ़ाया। बादशाह ने दंडवत कर मस्तक पर पाग में बांधा और प्रार्थना की, महाराज मैं आपकी शरण हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार करो। आपने आज्ञा की, हम गौड़ देश में पधारे हैं, तब से तेरा उद्धार हो गया है। पीछे बादशाह दंडवत कर अपने घर गया। यह चरित्र श्री गोसाई जी ने गौड़ देश में नारायण दास जी के घर की बैठक में प्रकट किया। नारायण दास जी ની વાર્તામાં પણ વધુ ખુલાસો આવે છે કે નારાયણ દાસ જ્યાં બેસતા દીવાન હતા એ જગ્યાએ જ્યારે નારાયણ દાસ ન હોય ત્યારે આ બાદશાહ પણ તેની જગ્યાએ બેસતા, તેને એકદમ શાંતિ મળતી અને નારાયણ દાસ માનસી કરતા તો તેની માનસીની ઝાંખી આ બાદશાહને પણ થતી। એક વખત કંઈક શ્રૃંગાર નારાયણ દાસજી ધરાવતા હોય છે અને આમ કંઈક શ્રૃંગાર વડું કરતા ભૂલી જાય છે, એવું કંઈક આવે છે। ત્યારે આ બાદશાહ કહે છે કે ઈ તો તમે શ્રૃંગાર તો વડું કરી લ્યો। એમાં આપણે આખી વાર્તા જોઈએ નારાયણ દાસ દીવાનની તો તેમાં ખૂબ જ સુંદર આવે છે। એટલે કે નારાયણ દાસની કૃપાથી બાદશાહને પણ દર્શન થાય છે અને નારાયણ દાસ જે માનસી સેવા કરે છે તેમાં તેના દર્શન આ બાદશાહને પણ થાય છે। એવી શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા છે। હવે 20મી બેઠક છે સોરમ કી બેઠક, તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના વધાઈ સ્વરૂપે શ્રી ગુસાઈજીના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છીએ। અત્યારે આપણે શ્રી ગુસાઈજીનું બેઠક ચરિત્ર જોઈ રહ્યા છીએ। ગયા પાઠમાં આપણે 19 બેઠક સુધી જોયું હતું। આજે આપણે 20મી બેઠકથી જોઈશું। બેઠક 20મી સોરમ કી બેઠક।
श्री गुसाई जी की बैठक श्री सोरम जी में श्री महाप्रभु जी की बैठक के पास है। वहाँ श्री गुसाई जी विराजे। सोरम घाट स्नान करके अपनी बैठक में पधारे। पीछे आपने सप्ताह की, तब महा अलौकिक आनंद हुआ। इसके बाद श्री गुसाई जी ने अपने कृपा कटाक्ष द्वारा अनेक जीवों का उद्धार किया। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने सोरम जी की बैठक में प्रकट किया। बैठक 21वीं गोधरा की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक गोधरा में नागजी भाई के घर में है। जब श्री गुसाई जी गोधरा पधारते तब नागजी भाई के घर में विराजते थे। एक समय नागजी भाई ने युगल गीत का प्रसंग पूछा। तब श्री गुसाई जी ने व्याख्यान किया। 3 दिन 3 रात्रि तक प्रसंग चला। ऐसे अद्भुत रस की वर्षा आपने की। उस समय सब भगवदियों को देह दशा का अनुसंधान नहीं रहा। तब आपने सभी को सावधान किया। यह महात्म्य देखकर अनेक जीव श्री गुसाई जी के शरण आए। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने श्री गोधरा की बैठक में प्रकट किया। बैठक 22वीं अलीना की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक अलीना में महीधर जी फूलभाई के घर में है। पहले नरहर जोशी जब श्री गुसाई जी को अलीना गांव में पधरा कर लाए, तब पधराने के लिए सन्मुख चले। रास्ते में रुपया और मोहर न्योछावर करते करते अपने घर पधरा लाए। पीछे सहकुटुंब श्री गुसाई जी के सेवक हुए। गांव के लोग भी बहुत से वैष्णव हुए। तब महीधर जी से फूलबाई ने प्रार्थना की, राज कृपा करके श्री ठाकुर जी पधरा दो। श्री गुसाई जी ने श्री मदन मोहन जी का स्वरूप पधरा दिया तथा सेवा की रीति सब बताई तथा कहा कि नरहर जोशी कहे वैसा करना। पीछे महीधर जी और फूलबाई ने श्री गुसाई जी की भली भांति सेवा की। पीछे श्री गुसाई जी ने वहां से विजय की। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने अलीना की बैठक में प्रकट किया। આપણે આ મહીધર ને ફૂલબાઈની વાર્તા જોઈએ તો તેમાં આવે છે કે તેના ઘરમાં આગ લાગે છે ત્યારે નરહરી જોશી પોતે જલથી ગોળ રાઉન્ડ કરે છે તો અલીણામાં મહીધર અને ફૂલબાઈના ઘરની આગ બુઝી જાય છે કારણ કે તેઓ હજી સેવક જ થયા હોય છે। એટલે નરહરી જોશીના મનમાં આવે છે કે જો એને એવો ભાવ આવશે કે અમે સેવક થયા અને અમારા ઉપર આ આફત આવી। એટલે આ રીતે નરહરી જોશી કરે છે। આપણે આખી વાર્તા જોઈએ તો વધુ સમજાય। बैठक 23वीं असारवा की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक असारवा में भाईला कोठारी के घर में है। जब आप राजनगर पधारते थे तब भाईला कोठारी के घर विराजते थे। लाचबाई भाट श्री गुसाई जी की सेवक थी। इसका भाई अधिकारी यानी हाकिम के पास रहता था। इसने अधिकारी के पास चुगली की। मेरी बहन श्री गोकुल के श्री गुसाई जी जो असारवा में विराजते हैं उनके पास रहती है, घर पर नहीं आती है। तब अधिकारी ने कहा असारवा चलो। अधिकारी असवारी करके आया। उस समय श्री गुसाई जी बैठक में गादी तकिया पर विराज रहे थे। लाचबाई पंखा की सेवा कर रही थी। तब श्री गुसाई जी से वैष्णव ने प्रार्थना की, महाराज अधिकारी आ रहा है, आपने आज्ञा की अधिकारी को आने दो। तब अधिकारी ने आकर देखा साक्षात ईश्वर विराज रहे हैं। अधिकारी ने साष्टांग दंडवत की तथा प्रार्थना की, महाराज अधिराज मैं आपकी शरण हूँ। तब अधिकारी ने 10,000 रुपया भेंट किए। श्री गुसाई जी वस्त्र देने लगे। तब अधिकारी ने विनती की, महाराज अधिराज कृपा करके ऐसी वस्तु दीजिए जो मेरे मस्तक पर सदैव विराजे। श्री गुसाई जी ने तब सुपारी दी। अधिकारी ने दंडवत कर सुपारी को पात्र में रखा। पीछे अधिकारी ने प्रार्थना की, महाराज 7 वर्ष से यहाँ वर्षा नहीं हुई है, इसके कारण यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। आप कृपा करिए। आपने आज्ञा की तुम दरवाजे में भीग कर ही जाओगे। तब अधिकारी दंडवत कर घोड़ा पर सवार हुआ और श्री जी बाबा और उसी समय घटा चढ़ाई। वर्षा बहुत हुई। भीग कर अधिकारी शहर में गया। पीछे उस अधिकारी ने उस भाट पर बड़ा क्रोध किया और कहा, चुगलखोर तू साक्षात ईश्वर से लड़वाता है, परंतु आपने कृपा कर मेरा अपराध क्षमा किया।
इनकी कृपा से वर्षा हुई है, सारे देश में आनंद हुआ, तेरे को तो ठोर यानी स्थान मारूंगा। यह सूचना श्री गुसाई जी के पास पहुंची। तब आपने अधिकारी को कहलवाया कि इसको किसी प्रकार का दंड नहीं हो, ऐसी मेरी आज्ञा है। अधिकारी ने तब कहा, देखो प्रभु की दयालुता का पार नहीं है तथा ऐसे जीव की दुष्टता का भी पार नहीं है। पीछे उस अधिकारी ने चुगलखोर को आदेश दिया कि अभी तो श्री गुसाई जी की आज्ञा से छोड़ता हूँ, नहीं तो ठोर ही मारता। आज के बाद किसी की भी चुगली मत करना, ऐसे कहकर उसको घर भेजा। यह महात्म्य देखकर अनेक जीव श्री गुसाई जी की शरण आए। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने असरवा राजनगर की बैठक में प्रकट किया। बैठक 24वीं, खंभात की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक नारायण सर तालाब के ऊपर है। वहाँ श्री गुसाई जी पधारे, डेरा कर विराजे। मुरारी आचार्य बड़े पंडित थे, आपके दर्शन को आए, आपसे कुछ चर्चा यानी बात किया। आपने एक क्षण में निरुत्तर कर दिया। तब उसने प्रार्थना की, महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मनुष्य हो तो उसको जीता जा सकता है, ईश्वर के आगे तो सभी की पराजय होती है। यह कहकर साष्टांग दंडवत की, आज्ञा लेकर घर को गए। हरिवंश जी ने विनती की, महाराजा धीराज जीव तो दैवी दिखता है, इसको अंगीकार कीजिए। ऐसे पंडित अपने मार्ग में चाहिए, पीछे तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करिए। उस समय श्री गुसाई जी मुस्कुराकर चुप रहे। चाचा जी ने जाना कि अंगीकार तो होगा किंतु कुछ विलंब से होगा। यह महात्म्य देखकर अनेक जीव श्री गुसाई जी की शरण आए। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने खंभात की बैठक में प्रकट किया। આપણે એક સાનુભવનો પ્રસંગ પણ જોયો હતો, તે ખંભાતની બેઠકનો જ કદાચ હતો, રેવાબાનો આપણે વૈષ્ણવના સાનુભવમાં જોયો હતો। બેઠક 25મી, નવાનગર की बैठक એટલે કે જામનગરની बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक नवानगर में बालाबाद रायण के घर में है। वहाँ आप विराजे। तब श्री गुसाई जी ने राजा जामत माची को अंगीकार किया तथा अनेक जीव का उद्धार किया। पीछे आपने श्री गुसाई जी ने सप्ताह की। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने श्री जामनगर की बैठक में प्रकट किया। बैठक 26वीं, गंगा गोड़गढ़ की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक गंगा गोड़गढ़ में है। वहाँ श्री गुसाई जी विराजे। वहाँ नागजी भाई आम की पोट यानी गठरी लेकर आए, आम झाड़ी में रखे और एक टोकरा भरकर ले आए। तब श्री गुसाई जी ने पूछा, नागजी यह क्या है? तब उसने विनती की, महाराजा धीराज यह आम लाया हूँ, आप अंगीकार करिए। आपने आज्ञा की, यह आम तो श्री द्वारकानाथ जी के लायक यानी योग्य है। तब नागजी भाई ने प्रार्थना की, महाराजा धीराज आप तो आरोगो, श्री द्वारकानाथ जी भी आरोगेंगे। श्री गुसाई जी ने आम आरोगे। आप नागजी भाई के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ 3 दिन तक आप विराजे। नित्य नियम से नागजी भाई आम का मनोरथ करते। 3 दिन तक कथा हुई, अनिर्वचनीय सुख हुआ। श्री गुसाई जी ने गंगा गोड़गढ़ की बैठक में यह चरित्र प्रकट किया। बैठक 27वीं, श्री द्वारका की बैठक। श्री गुसाई जी की बैठक श्री द्वारका जी में जगत देहरा के समीप श्री दाऊ जी के मंदिर के पास है। वहाँ आप सेवा के अवकाश में विराजते और कथा कहते। कथा में अनिर्वचनीय सुख होता। यह चरित्र श्री गुसाई जी ने श्री द्वारका की बैठक में प्रकट किया। बैठक 28वीं, श्री द्वारका में राम लक्ष्मण जी के मंदिर की बैठक। श्री गुसाई जी श्री द्वारकानाथ जी से विदा होकर श्री राम लक्ष्मण जी के मंदिर पर डेरा कर विराजे। वहाँ श्री गुसाई जी की बैठक है। वहाँ नागजी भाई आम लेकर आए। तब श्री गुसाई जी ने पूछा, नागजी क्या लाए हो? उसने विनती की, महाराज आम लाया हूँ, आपने आज्ञा की, ये आम द्वारकानाथ जी में पहुँचाओ। उस समय नागजी भाई ने विनती की, महाराज मेरे तो आपसे काम है। तब आपने आज्ञा की, श्री द्वारकानाथ जी के आरोपने पर पीछे हम लेंगे, इसलिए श्री द्वारकानाथ जी में पहुँचाओ। तुम आओगे, उसके पीछे हम चलेंगे। तू गोमती में स्नान कर श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन करके आना। नागजी भाई श्री द्वारका जी गए तथा श्री गोमती जी में स्नान कर आम का टोकरा श्री द्वारकानाथ जी के मंदिर में दिया
और राजभोगार्ती के दर्शन किए। उस समय श्री गोसाई जी द्वारकानाथ जी को बीड़ा आरोगा रहे हैं। ये दर्शन नागजी भाई को हुए। तब वे आश्चर्य में पड़ गए कि श्री गोसाई जी यहाँ पधारे हैं क्या। बाहर आकर देखे तो श्री गोसाई जी के साथ आदमी भी दिखाई नहीं दिए। तब नागजी वहां से चल दिए और श्री राम लक्ष्मण जी के मंदिर में आए। वहां श्री गोसाई जी डेरा पर भोजन कर विराज कर बीड़ा आरोग रहे हैं। तब नागजी भाई ने साष्टांग दंडवत की। श्री गोसाई जी ने पूछा कि श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन कराए। नागजी भाई ने विनती की कि राज, श्री द्वारकानाथ जी के अद्भुत दर्शन हुए। श्री द्वारकानाथ जी को आपने बीड़ा आरोगाया और श्री द्वारकानाथ जी ने आपको बीड़ा आरोगाया। ऐसा अलौकिक दर्शन आपकी कृपा अनुग्रह से हुआ है। तब आपने आज्ञा की, तेरा संदेह निवृत्त करने के लिए हमने तेरे को दर्शन दिए। इससे श्री महाप्रभु जी का संबंध श्री द्वारकानाथ जी में सदैव बना रहता है, इसलिए तुम्हारा भी संबंध सदा रहता है। तेरे जो आम है उनको हमने ही आरोगा है। तब नागजी भाई ने साष्टांग दंडवत की। पीछे आपने आज्ञा की, जूठन महाप्रसाद ले लो। तब नागजी भाई ने जूठन महाप्रसाद लिया। उसके ऊपर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद आपने वहां से विजय की। राजनगर, गोधरा, उज्जैन होते हुए श्री गोकुल पधारे। यह चरित्र श्री गोसाई जी ने द्वारका जी में श्री राम लक्ष्मण जी के मंदिर में प्रकट किया। આ રીતે શ્રી ગોસાઈજીની 28 બેઠકનું ચરિત્ર અહીં વિરામ લે છે। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને આપને શ્રી ગોસાઈજી વિશે કાંઈ નવા પ્રસંગો જાણવાની ઈચ્છા હોય તો જરૂર જણાવશો। જો અમારી પાસે બિરાજતા હશે તો અમે તે અપલોડ કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ। સેવા અને સત્સંગ માટે સદા તત્પર રહેતા મારા વાલા વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સર્વે વૈષ્ણવોને શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્યોત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય। હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું શ્રી ગુસાઈજીના ઉત્સવ પ્રસંગના આજના સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે કૃપા સિંધુ એવા શ્રી ગુસાઈજીના રસરૂપ પ્રસંગોનું રસ દર્શન કરીશું અને સાથે સાથે શ્રી ગુસાઈજીના 108 નામમાં જે નામ બીજરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે તેનું ખૂબ જ વિસ્તારથી રસ દર્શન કરીશું અને તે પણ હિન્દીમાં। એ નામ શ્રી 4 યુથના સ્વામિનીજીઓના અધિપતિ હોવાનું પણ સૂચન કરે છે। જેવી રીતે બીજ હોય તો વૃક્ષ થાય તેવી રીતે અહીં જે નામની ચર્ચા કરીશું એ શ્રી ગુસાઈજીના 108 નામોમાં બીજરૂપ છે। એટલે આજે આપણે બને એટલા પ્રસંગો લેવાનો પ્રયાસ કરીશું અને સત્સંગ કરીશું। આ સત્સંગ સેતુમાં જોડાવા આપ સર્વેને હાર્દિક આમંત્રણ છે। આપણા શ્રી ગુસાઈજી કૃપા સિંધુ છે। કૃપા સિંધુ એટલે કૃપાના સાગર। સાગર ક્યારે સુકાતો નથી કે છલકાતો નથી। તેવી જ રીતે શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા સદા એકસરખી જ રહે છે, કારણ કે તેઓ કૃપા કરવા જ પ્રગટ થયા છે। આપ મુકમ કરોતિ વાચાલમ છે, જીવ માત્ર ઉપર દયા કરનારા છે। અપરિગ્રહ વ્રત ધારણ કર્યું છે। ભગવાન કૃપા સાધ્ય છે। સેવામાં સાવધાની રાખવાવાળા છે અને ભગવત સુખનો વિચાર કરવાવાળા છે। અત્યારે આપણે સૌપ્રથમ કૃપા સિંધુ શા માટે શ્રી ગુસાઈજીને કહેવામાં આવ્યા છે તેનો ખૂબ જ સુંદર પ્રસંગ જોઈશું। कृपा सिंधवे नमः। कृपा सिंधु यानी कृपा के सागर। भक्त के लिए ही आप स्वयं प्रकट हुए, उसमें क्या कारण है
इस प्रश्न के जवाब में दूसरा नाम कहते हैं। आप कृपा के सागर हैं। आप भक्ति रत्नाकर हैं। जिस प्रकार समुद्र अगाध है उसी प्रकार से आप में भी अगाधता का गुण है। जैसे समुद्र स्वयं ही मर्यादा को लांघता नहीं है, उसी प्रकार से आपकी कृपा भी स्वमर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसा सूचित करने के लिए आपको कृपा सिंधु कहा गया है। जैसे अतिवृष्टि होने से नदी, जलाशय इत्यादि पूरे भर जाते हैं तथा वृष्टि के अभाव में सूख जाते हैं, ऐसा समुद्र के साथ कभी नहीं होता है। वह हमेशा एक ही अवस्था में रहता है। ऐसे ही श्री विठ्ठल की कृपा भी सदा एक रस एक सरीखी ही होती है। ऐसा सूचित करने के लिए उनको कृपा सिंधु कहा गया है। बाकी उन्हें कृपालु भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके प्राकट्य में कृपा ही कारण है। अतः प्रारंभ में की हुई शंका नहीं रहती है। श्री महाप्रभु जी दामोदर लीला के प्रसंग में श्री सुबोधिनी जी में भगवत कृपा का स्वरूप समझाते हैं। भगवान के अलौकिक धर्म एवं धर्मी स्वरूप से भी विशेष बलवत्तर आपकी कृपा है, जिसका कोई आदि नहीं है तथा जिसका कोई अंत भी नहीं है, जो सर्वत्र व्यापक और सर्व सामर्थ्य युक्त है। उनको एक मुग्ध गोपी यशोदा जी डोरी से बांधती है और भगवान उसमें बंध जाते हैं। उसमें भगवान की केवल कृपा ही कारण है। कृपासित स्वधर्म भक्त वश्यता। श्री विठ्ठलेश भी भगवत स्वरूप है। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल निगम एक करी गावे हो। इसलिए आप भी कृपा स्वरूप है। आपकी कृपा रूपी निधि की तुलना सागर के साथ की गई है। समुद्र के 3 धर्म हैं, उसकी अगाधता, उसकी सदैव पूर्णता, स्वमर्यादा का हमेशा पालन करने की तत्परता, यह 3 कारण हैं। श्री गुसाई जी की कृपा शक्ति के भी ये दिव्य गुण है। इसलिए आप केवल कृपालु नहीं हैं, परंतु कृपा सिंधु, कृपा के सागर है। कृपा करना यह आपका सहज स्वभाव है। जीव की योग्यता, जीव का अधिकार, जीव की साधन करने की क्षमता इत्यादि का विचार किए बिना केवल कृपावश होकर के जीवों को भगवत स्वरूप अनुभव करवाने का आपका सामर्थ्य आप प्रकट करते हैं। आपके इस नाम का स्वारस्य वार्ता साहित्य, बैठक चरित्र और कीर्तन साहित्य से हमें प्राप्त होता है। वार्ता चरित्र संगति। एक दिन श्री गुसाई जी गोकुल से गिरिराज पधार रहे थे। रास्ते में आपने एक अंधे ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। आपको दया आ गई और आपने विचारा, बिना आंखों के दुखी है, मात्र कृपा दृष्टि करके देखते ही उसे दिखाई देने लगा। आपको उस पर अधिक कृपा करने की इच्छा हुई। उसे आपने पास बुलवाया और उसे आज्ञा की, तुम हमारे साथ रहोगे। कृपानाथ, मुझे और क्या चाहिए? आप ब्राह्मण को लेकर श्री गिरिराज पधारे। परस्पर कुशल समाचार पूछे। श्रीनाथ जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा करी, अब वाको सेवक करो। એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીએ સ્વયં આજ્ઞા કરી છે ગુસાઈજીને કે હવે આને સેવક કરો। श्री गुसाई जी ने उसे ब्रह्म संबंध करवाया। आप श्री ने उसे वल्लभाष्टक सिखाया। वल्लभाष्टक सीखते ही आपकी कृपा से उसे सारी लीलाओं की स्फूर्ति हुई। वे नित्य श्री गुसाई जी की चरण सेवा करने लगे। वे अडिंग के रहवासी थे और उनका नाम धर्मदास था।
ऐसे दीनहीन और पामर जीवों को भगवत प्राप्ति करवाने वाले श्री गुसाई जी सचमुच ही कृपा सिंधु कृपा सागर है। इसलिए आपकी स्तुति करते हुए कहा है कि यदनुग्रहतो जन्तोः सर्व दुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभ नंदनम। जिनकी कृपा से जीव सभी दुखों को पार कर जाता है, ऐसे श्री वल्लभ नंदन श्री गुसाई जी को मैं वंदना करता हूँ। बैठक चरित्र संगति। असारवा यानी अहमदाबाद में भाईला कोठारी के 9 वर्ष के बाद बाल दामाद गोपालदास जी जन्म से ही गूंगे थे। उन पर कृपा करके आपने अपना चर्वित तांबूल उनको दिया। अधरामृत के स्पर्श से उनके हृदय चक्षु और वाणी दोनों खुल गए तथा उन्होंने श्री वल्लभाख्यान गाया। कीर्तन संगति। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करते कृपा निज हस्त दे माथे। जे जन शरण आय अनुसरहि कर गहि सोपत श्री गोवर्धन नाथ। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवधारा वयो जाते। भज कृष्ण दास काज सब सरहि जो जाने श्री विठ्ठल नाथे। बीजी कीर्तन संगति छे वल्लभाख्यान। वंदो श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल। जगती तल उतार करवा प्रगट्या परम दयाल। એટલે શ્રી ગુસાઈજી આવા કૃપા સિંધુ છે। આપણે ઘણા બધા પ્રસંગોનું રસદર્શન કરવાનું છે। આજે આપણે થોડું હિન્દીમાં પણ લઈશું કે જેના કારણે જે વૈષ્ણવો ગુજરાતી ન સમજી શકતા હોય તેને પણ થોડોક આનંદ લેવામાં ગમે કે તેને સમજાણું। ઘણા વૈષ્ણવોને ગુજરાતી ન સમજાતું હોય તો આ નામરત્નાખ્યરનું પુસ્તક હિન્દીમાં છે તો થોડુંક આપણે હિન્દીમાં પણ લઈએ। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे रैन दिन नित्य प्रति सदा पल छीन घड़ी करत विद्वंस जन अखिल अघ परिहरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे रैन दिन नित्य प्रति सदा पल छीन घड़ी। હવે આપણે જોવાના છીએ કે શ્રી ગુસાઈજીનું નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રમાં એવું તે કયું નામ છે કે જે બધા જ નામોના બીજરૂપ છે અને 4 યુથના અધિપતિ હોવાનું પણ એમાં સૂચન છે। શ્રી ગુસાઈજી અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ લઈ જનારા છે। શ્રી ગુસાઈજીનું નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રમાં પહેલું નામ કયું છે તો કહે શ્રી વિઠ્ઠલ। આ શ્રી વિઠ્ઠલ નામ છે એ બધા જ નામોના બીજરૂપ છે અને કયા 4 યુથાધિપતિ હોવાનું સૂચન કરે છે તેનું આજે આપણે સવિસ્તર હિન્દીમાં રસદર્શન કરીશું। श्री रघुनाथ जी ने सबसे पहले नाम प्रकट किया श्री विठ्ठल। यह नाम जगत प्रसिद्ध है परंतु उसका रहस्य अज्ञात है। जैसे छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष का विस्तार होता है, इसी प्रकार यह नाम सभी नामों का बीज रूप है। उसमें से सभी नाम प्रकट हुए हैं, इसीलिए यह नाम बीज रूप में सर्वप्रथम कहा गया है। बीज अत्यंत सूक्ष्म होता है परंतु उसमें संपूर्ण वृक्ष छिपा हुआ होता है।
बीज की शक्ति अकल्पनीय होती है। ऐसा ही इस नाम का भी है। सबसे पहले इस नाम का और प्राकट्य का स्मरण करें। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी की बैठक में विराजने वाले श्री महाप्रभु जी के पास श्री विठोबा जी पधारे और यह पुरुषोत्तम की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को निवेदन करी। आप अब गृहस्थाश्रम का स्वीकार करिए। आपके वंश रूप में साक्षात प्रभु को प्रकट होना है। श्री महाप्रभु जी ने इस आज्ञा को स्वीकार किया तथा उनके यहाँ संवत 1672 में श्री विठ्ठल का प्राकट्य हुआ। श्री विठ्ठलनाथ 1572 में श्री विठ्ठल का प्राकट्य हुआ। श्री विठ्ठलनाथ जी का भगवत स्वरूप भी उसी समय श्री महाप्रभु जी के यहाँ पधारे, इसलिए आपने बालक का नाम श्री विठ्ठल रखा। इस प्रकार चरणाट की बैठक में श्री विठ्ठल का रूप और नाम प्रकट हुआ। इस महाअलौकिक अवसर का दर्शन करने श्री गोपालदास भाई गाते हैं। आ धवल धनाश्री गान जे करे, आ धवल धनाश्री गान जे करे, उच्चरे श्री विठ्ठल जी अवतार, आ सारस्वत लीला जे जन लहे, ए दास नो दास जाय वारणे, बारणे रहियो रे उस्तव जुए, को एक भगवदी ते समय। अब हम श्री विठ्ठल रूप की संगति का चिंतन करें। गोस्वामी श्री द्वारकेश जी भाव भावना में श्री विठ्ठलनाथ जी ठाकुर जी की स्वरूप भावना समझाते हैं। शरद की रात्रि को भगवान ने वेणुनाद करके व्रजांगनाओं को अपने पास वृंदावन में बुलवाया। सब कुछ छोड़कर आने वाली व्रजांगनाओं से भगवान ने वापस जाने की आज्ञा करी। तब व्रजांगनाओं ने भगवान के पास सवाल जवाब किए। उस समय प्रभु ने अपने दोनों श्रीहस्त कमर पर टिकाए तथा बंक यानी भ्रुकुटी करके ठाड़े रहे। वे व्रजांगनाओं की सर्वात्म भाव की कसौटी कर रहे थे। इस लीला का जो स्वरूप है वही श्री विठ्ठलनाथ जी है। इसी प्रकार श्री गुसाई जी श्री विठ्ठलनाथ जी भी शरण में आने के लिए उत्सुक जीव की पात्रता की कसौटी करते हैं तथा उसकी तत्परता की परीक्षा करते हैं। शरण में लेने के बाद उसकी कृति देखे बिना ही उसे भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। इस प्रकार भगवान एवं श्री आचार्य इन उभय रूपों से आपके रूप की संगति के दर्शन होते हैं। अब हम श्री विठ्ठल नाम के स्वारस्य का चिंतन करें। श्री विठ्ठल शब्द 4 वर्ण अक्षरों से बना हुआ है। श्री प्लस विद प्लस ठ प्लस ल। श्री पद ऐश्वर्य सुंदरता आनंदवाचक है। विद यानी ज्ञान, ठ यानी शून्य राग रहित और ल यानी स्वीकारते हैं। जो शरण में आए हुए ज्ञान शून्य जीवों को संसार में से राग रहित करके सेवक रूप में स्वीकारते हैं, ऐसे षड्विद ऐश्वर्य आदि धर्मों से युक्त श्री विठ्ठल। श्री विठ्ठल शब्द के ये चारों वर्ण 4 स्वामिनी स्वरूप है। श्री यानी लक्ष्मी रूपा श्री राधिका जी, वेद यानी ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप वेद की श्रुतियां, श्रुति रूपा गोपीजनों के स्वामिनी श्री चंद्रावली जी। ठ यानी शून्य यानी राग रहित संसार ने जिनको स्पर्श नहीं किया है, ऐसी कुमारिकाएं। ऋषि रूपा गोपीजनों के स्वामिनी श्री राधा सहचरी जी। ल यानी स्वीकार करते हैं। इन सभी यूथों के रास रमण के लिए खुद के पुलिन पर से स्वीकार करने वाली चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी।
इस प्रकार अपने भावात्मक स्वरूप में चारों स्वामिनियों सहित चारों प्रकार के भक्तों के युद्ध में विलास करने वाले वे श्री विठ्ठल। आपका दूसरा स्वरूप है श्री चंद्रावली जी का। वे श्रुति रूपा गोपीजनों के युद्ध के स्वामिनी है। अज्ञान दूर करके ज्ञान प्रकट करने का धर्म वेद की श्रुतियों रूपी ज्ञान के आप स्वामी हैं। इस प्रकार नाम संगति से भी स्पष्ट हुआ कि श्री विठ्ठल वही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। विवरणकार दोनों स्वरूपों में विराजने वाले अलौकिक षटगुण धर्मों का निरूपण करते हैं, उसे हम समझे। भगवान में 6 अलौकिक धर्म श्री, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य है। यह धर्म जीवात्मा में नहीं है। यह धर्म जिनमें होते हैं उसे धर्मी कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण अलग न होकर एक ही है, उसी प्रकार धर्म और धर्मी भी एक ही है। बिना धर्म के धर्मी नहीं होता और बिना धर्मी के धर्म भी नहीं होता। श्री गुसाई जी भी में इन 6 अलौकिक धर्मों का नीचे लिखे हुए अनुसार दर्शन होता है, इसलिए वे भी धर्मी स्वरूप हैं। पहलू ऐश्वर्य। जब भगवत प्राप्ति के सभी मार्ग नष्ट हो जाते हैं, तब किसी भी साधन की अपेक्षा के बिना वे दीनहीन जीव को भी भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। यह उनका ऐश्वर्य धर्म है। कहो के देह दमन साधन करी मूर्ख जन, विद्यमान आनंद तज चलत क्यों अपाथे। बीजू वीर्य, ज्ञान, कर्म, उपासना इत्यादि मार्गों में कठिन देह दमन करके त्रस्त होने वाले जीवों को देह, इंद्रियों इत्यादि को होने वाले क्लेश भी वे दूर करते हैं। अतः यह राग, भोग, श्रृंगार युक्त रसमय सेवा मार्ग प्रवृत्त हुआ है। यह उनका वीर्य धर्म है। त्रिजु यश, हीन जीवों को भी रसमय सेवा मार्ग द्वारा भगवत प्राप्ति करवाने के कारण उनका यश धर्म सर्वत्र फैल गया है। एक ब्रह्मांडे जेना जश न माया तेना हुआ कोटि अनंत, तोय त्या थकी वादियो जैवस्यो मुख धीमंत। चौथु श्री, आपके नाम के आरंभ में लगने वाला श्रीपद आनंदवाचक है। आनंद की समृद्धि केवल प्रभु के पास में ही है, अतः वह आपका श्री धर्म है। पांचवों ज्ञान, आपके नाम में वेद वर्ण ज्ञानवाची है, इसीलिए वह चिद्रूप है। आपके प्रथम दर्शन से ही अनेक जीवों को आप में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप की झांकी हुई है। श्री चित स्वामी शरण में आते ही गाते हैं, गिरिधर सो पहचान अब भई, गिरिधर सो पहचान, गिरिधर सो पहचान अब भई, गिरिधर सो पहचान। छठू वैराग्य, आपके नाम में रहने वाला ठ वर्ण शून्यता राग के अभाव का द्योतक है। सद्रूप प्रकट होते ही शून्यता नहीं रहती। आपके दर्शन से ही जीव का संसार के प्रति राग भगवत अनुराग में परिणत हो जाता है।
यह आपका वैराग्य धर्म है। कई बार जीवकोटि के भक्तों के अलौकिक चरित्रों को देखकर उनको भी भगवान विशेषण से अलंकृत किया जाता है। जिस प्रकार भगवान नारद श्री गुसाई जी के लिए ऐसा विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर कहे अनुसार केवल भगवान में ही जो संभव हो ऐसे 6 अलौकिक धर्म उनमें विद्यमान है। इसलिए आप वस्तुतः कृष्ण एवं ही है। इस नाम और रूप में प्रथम दर्शन में ही महानुभाव श्री नंददास जी ने गाया। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजे नाम। आनंदकारी प्रभु मंगलकारी अशुभ हरण जन पूरण काम। ये ही लोक परलोक के बंधु को कही सके तिहारो गुणग्राम। नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि राज करो श्री गोकुल सुखधाम। હવે આપણે વાર્તા ચરિત્ર સંગતિ જોઈશું। 252 वैष्णव की वार्ता। आगरा की शक्तरानी की वार्ता है। यह शक्तरानी स्वभाव से अत्यंत मूढ़ थी। एक दिन वे लोग श्री गुसाई जी के पास नाम लेने के लिए आए। आपने श्रीमुख से श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा कहा और उस शक्तरानी को इसी प्रकार बोलने की आज्ञा करी, परंतु प्रयास करने के बाद भी वह शक्तरानी अष्टाक्षर मंत्र बोल ही नहीं सकी। उसको बोलते जमता ही नहीं था। श्री गुसाई जी ने पूछा, आपको मेरा नाम आता है? शक्तरानी ने हाँ कहा। तब आपने आज्ञा की, तो मेरा नाम लिया करना। शक्तरानी श्री गुसाई जी के सिवाय और कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी ऐसी अनन्यता देखकर श्री गुसाई जी भी प्रसन्न हुए। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ जी भी उसे दर्शन देते थे। बैठक चरित्र। चरणाट में बैठक जी के स्थान में आप प्रकट हुए। आपके नाम के संस्कार भी वहीं हुए। श्री विठल नाम और रूप से आप सदैव वहां विराजते हैं। वहां हम आप श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। હવે આવે છે કીર્તન સંગતિ। એટલે શ્રી વિઠ્ઠલ નામ આપનું છે એની કીર્તન સંગતિ પણ અહીં આપેલી છે। શ્રી વિઠ્ઠલેશ વિઠ્ઠલેશ રસના રે रट मेरी। श्री विठलेश विठलेश रसना रट मेरी। ग्रंथन को यह सार या हिते होत पार। तो सो कहूँ तू हित केरी। चाहे जो भलो तेरो कहियो बेग मान मेरो। भजिले श्री घोषनाथ धन्य जीवन तेरी। जगना जन को सहाय प्रेम पुंज सुयश गाय। असत बात दूर करो विषया अरुझेरी। बीजी कीर्तन संगति में छे ब्रह्मकुल हरि अवतर्या ते टाळवा भूमि भार। श्रीनाथ श्री विठ्ठल नाम निरूपण वृंदावन श्रृंगार। ते पदवंदु एक रसना के कहो गुण प्रकट विविध विहार। नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार। त्रीजी कीर्तन संगति में छे श्री विठ्ठल सुखकारी नामे निष्पाप थाय नर नारी। दुर्गति सकल निवारी। प्रगट्या श्री व्रजपति रास बिहारी।
ऐसा आपका प्रमेयात्मक स्वरूप एवं नाम का अलौकिक स्वारस्य है। અત્યારે આપણે કૃપા સિંધુ એવા શ્રી ગુસાઈજી ના 2 નામોનું શ્રવણ કર્યું। હવે આપણે આવતા પાઠમાં નામરત્ન આખ્ય સ્તોત્રની એક ઝલક જોઈશું, એટલે તેમાંથી થોડાક નામોનું ચિંતન આપણે હિન્દીમાં કરીશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો, અને જો આપને ગમ્યું હોય તો જરૂરથી બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।